السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی پاک زندگی کے بارے میں جاننے اور ان سے کچھ اہم باتیں سیکھنے کے لیے۔ ناظرین، اجمیر شہر سے باہر ایک بڑا اور کھلا میدان تھا۔ اس میدان میں ایک پیڑ لگا ہوا تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس پیڑ کے نیچے جا کر بیٹھ گئے۔ اصل میں یہ میدان راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کی بیٹھنے کی جگہ تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کچھ دیر تک وہیں آرام کرتے رہے۔ اچانک اونٹ کی نظر ایک ایسے درویش پر پڑی جو اپنی باہری شکل و صورت کے حساب سے باقی جوگیوں اور سادھوؤں سے الگ لگ رہے تھے۔ اونٹ والے تیزی سے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور بہت کڑوے لہجے میں بولے، اے آدمی، تو کون ہے اور یہاں کیوں آیا ہے؟ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اونٹ والوں کی سخت باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑے نرم لہجے میں فرمایا، میں اللہ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہوں اور اس پیڑ کی چھاؤں میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا ہوں، لیکن اونٹ والوں کے دلوں پر آپ کی پیاری اور نرم باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے کہا، یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کی آرام کرنے کی ہے، یہاں کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، یہ تو بہت بڑا میدان ہے، راجہ کے اونٹ تو اور بھی کہیں بیٹھ سکتے ہیں، اگر میں یہاں بیٹھ گیا ہوں تو اس سے تمہیں کیا نقصان ہے؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لہجے میں بڑی نرمی اور مٹھاس تھی، مگر اونٹ والوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ انہوں نے آپ سے بہت ہی بدتمیزی سے بات کرنا شروع کر دیا۔ خواجہ غریب نواز نے اپنا چھوٹا سا سامان اٹھایا اور یہ کہتے ہوئے وہاں سے اٹھ گئے، چلو یہ درویش تو یہاں سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کے بعد جو بھی یہاں آ کر بیٹھے گا پھر اسے کوئی ہٹا نہیں سکے گا۔ اونٹ والوں نے آپ کا خوب مذاق اڑایا اور زور زور سے ہنسنے لگے، مگر خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ان سب باتوں کی پرواہ کیے بنا انا ساگر کی طرف چلے گئے۔ انا ساگر اجمیر کے پاس ایک بہت پرانا تالاب تھا جس میں اونچی جاتی کے ہندو لوگ نہایا کرتے تھے۔ خواجہ غریب نواز کی دعوت اور محنت کے بعد یہ تالاب مسلمانوں کے استعمال میں بھی آنے لگا۔ انا ساگر آج بھی خواجہ غریب نواز کے مزار سے 4-5 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ عرس کے دنوں میں اس پختہ تالاب کے کنارے ہزاروں مسلمان وضو کرنے کے لیے آتے ہیں، کچھ لوگ بڑے شوق سے یہاں نہاتے بھی ہیں۔ خیر، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں سے چلے جانے کے بعد شام کو پرتھوی راج چوہان کے اونٹ گھاس چرتے ہوئے میدان میں آ گئے اور رات بتانے کے لیے زمین پر بیٹھ گئے۔ صبح ہوئی تو ہمیشہ کی طرح اونٹ والے آئے۔ انہوں نے اونٹوں کے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن اونٹ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اونٹ والوں نے کئی بار کوشش کی مگر ناکام رہے۔ پھر انہوں نے بے زبان اونٹوں کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ کچھ اونٹ چوٹوں سے لہولہان ہو گئے، لیکن پھر بھی کوئی اونٹ زمین سے نہیں اٹھا۔ اونٹوں کو مارنے پیٹنے کے بعد اونٹ والوں کو اس مسلمان درویش کے وہ الفاظ یاد آئے جس میں انہوں نے کہا تھا، چلو میں تو یہاں سے چلا جاتا ہوں، لیکن اس کے بعد جو بھی یہاں بیٹھے گا اسے کوئی اٹھا نہیں سکے گا۔ اب اونٹ والوں کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب اسی فقیر کی بات کا اثر ہے۔ اس احساس کے ساتھ اونٹ والوں کے ہوش ہی اڑ گئے۔ انہوں نے سمجھ لیا کہ اب بھلائی اسی میں ہے کہ سمراٹ پرتھوی راج چوہان کو سارا حال بتا دیا جائے۔ جب اونٹ والوں نے دلی اور اجمیر کے حاکم کو یہ واقعہ سنایا تو وہ گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پھر اس نے اپنے خدمتگاروں کو ڈانٹتے ہوئے کہا، یقیناً تم لوگوں نے اس فقیر کی بے ادبی کی ہوگی، ورنہ سادھو سنت تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں، جاؤ اس فقیر کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ اب یہ اونٹ اسی کی دعا سے اٹھیں گے جس کی بد دعا سے زمین نے انہیں جکڑ رکھا ہے، جیسے ہی ہو جا کر اس سادھو سے معافی مانگو۔ پرتھوی راج چوہان کا حکم ملتے ہی اونٹ والے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی تلاش میں نکل پڑے۔ کچھ دیر کے بعد ڈھونڈنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ آپ انا ساگر کے کنارے ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اونٹ والوں نے آپ کے پاس جا کر ہاتھ جوڑے اور معافی مانگنے لگے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے بڑے نرم لہجے میں فرمایا، جاؤ، زمین اب تمہارے اونٹوں کو چھوڑ دے گی۔ بالخیریت وہ پیر چھو کر واپس آ گئے۔ جب وہ میدان میں پہنچے تو دیکھا کہ اونٹ وہاں سے ادھر ادھر دوڑتے پھر رہے ہیں۔ یہ اجمیر کی سرزمین پر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا
करामात था। जब ऊँट वालों ने अपने मजहब के लोगों को यह वाक़या सुनाया तो अजमेर के लोगों में यह बात आग की तरह फैल गई। उस दौर में सारा हिंदुस्तान बुत परस्ती और जादूगर के जाल में फंसा हुआ था, इसीलिए ज़्यादातर लोगों ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को जादूगर ही समझ लिया। लोग कहने लगे, आओ चलकर उस जादूगर का जादू देखते हैं। अजमेर के बासिंदे कतार दर कतार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को देखने पहुंचने लगे, मगर वहाँ ना कोई जादू था और ना ही कोई तमाशा, बल्कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे पर हर वक्त एक मुस्कुराहट थी जो दिलों को सुकून और तसल्ली दे रही थी। यही वह मुस्कुराहट थी जिसने नफरत की आग में भी मोहब्बत के फूल खिला दिए थे। आप रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे का अजीब हुस्न था जिसे देखकर पत्थर जैसे कठोर दिल भी पिघल जाया करते थे। इसी भीड़ में कुछ राजपूत भी थे जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को कत्ल करने के इरादे से आए थे, मगर आपको देखकर उनके दिल बदल गए और वह मुसलमान हो गए। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के हुस्न और पाकीज़गी किरदार को देखकर लोगों ने अपने बाप दादाओं का मजहब छोड़ दिया और मजहब इस्लाम में दाखिल हो गए। सदियों से बुतों की पूजा करने वाले चंद लम्हों में ही एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की वहदानियत पर ईमान ले आए। हालांकि उस वक्त इस्लाम कबूल करने वालों की तादाद उंगलियों में गिनी जा सकती थी, लेकिन यह नज़ारा साफ था कि कुफ्र की मजबूत दीवारें चटकने लगी थीं। इन दीवारों में हल्की दरारें नज़र आने लगी थीं। बुतों की पूजा करने वालों के लिए यह बड़ी हिला देने वाली खबर थी। हिंदुओं के लाखों देवी देवता मिलकर भी एक अनदेखे खुदा के मानने वाले को इस राज से न रोक सके। दूसरे राजपूतों के चेहरे पर नफरत की लाली उभर आई। ब्राह्मण गुस्से से तिलमिला उठे और देवी देवताओं के पुजारी बेचैनी में इधर उधर घूमने लगे। हर तरफ एक कोहराम मचा हुआ था। हिंदू धर्म के रखवाले मंदिरों में जमा हुए और उन लोगों को बुलाया जो इस्लाम में दाखिल हुए थे। उन्होंने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की तरफ इशारा करते हुए पूछा, आखिर तुम्हें उस अजनबी के पैगाम में ऐसा क्या मिला? क्या तुमने उसके खुदा को देखा? एह ब्राह्मण, एह विष्णु, एह शंकर और हम राम, इनमें से कोई भी तुम्हें रोक न सका। क्या तुम्हारे बाप दादा पागल थे? मुसलमान होने वाले राजपूतों ने जवाब दिया, हम कुछ नहीं जानते। हमारे दिल ने गवाही दी है कि वह सच बोलता है, बस हम अपने दिल के हाथों मजबूर हो गए। पुजारियों ने उनसे ज़्यादा बहस नहीं की, बल्कि वही किया जो हमेशा से होता आया था। उन्होंने मुसलमान होने वाले राजपूतों को पेशकश की, अगर तुम इस्लाम छोड़कर वापस हमारे मजहब में आ जाओ तो तुम पर सोने और चांदी की बारिश कर दी जाएगी। लेकिन राजपूतों ने इस पेशकश को ठुकरा दिया। फिर उनसे कहा गया, अगर तुम हमारे मजहब में वापस नहीं लौटे तो तुम्हारी सारी सहूलियत छीन ली जाएगी और राजस्थान की ज़मीन पर तुम पर तंग कर दी जाएगी। मगर इन धमकियों का भी उन राजपूतों पर कोई असर न हुआ। आखिरकार उन्हें उनकी बिरादरी से निकाल दिया गया। कुछ लोगों ने राजा पृथ्वीराज चौहान को यह राय दी कि इन बागियों को मार दिया जाए ताकि हमेशा के लिए इस्लाम के खतरे से छुटकारा मिल सके। लेकिन राजा पृथ्वीराज बड़ा ही समझदार इंसान था। उसने ऐसा करने से मना कर दिया क्योंकि इस इलाके के सारे राजपूत किसी न किसी तरह आपस में जुड़े हुए थे। अगर इन राजपूतों को मार दिया जाता तो इससे दूसरे राजपूत भी बागी हो सकते थे। इसीलिए पृथ्वीराज चौहान ने बागियों को मारने से इनकार कर दिया। लेकिन इन मुसलमान होने वाले राजपूतों पर कुछ पाबंदियां लगा दी गईं। वहीं राजपूत जो कल तक हिंदुस्तान की शान हुआ करते थे, आज अपने ही लोगों के लिए अजनबी होकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में आ गए थे। जब कभी उन्हें अपने घरों की आज़ाद माहौल की याद आती तो वह बेचैन हो जाते थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उनकी यह हालत देखकर फरमाते, तुम लोगों की यह बेचैनी कुछ समय के लिए है। जो लोग अल्लाह की राह में घर से बेघर हुए या सताए गए, वह जल्द ही बड़ी जीत और सफलता पाएंगे। तुम्हारे दुश्मन के लिए सिर्फ शर्म और जिल्लत होगी। बस कुछ दिन की बात है, आसमान का फैसला ज़मीन पर जल्द ही दिखेगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की यह हैरत अंगेज तकरीर सुनकर राजपूतों के दिल शांत हो जाते और वे खुदाए वहदहू ला शरीका लहू का नाम लेकर एक ऐसी खुशी का एहसास करते जिसके पहले बिल्कुल अनजान थे। पृथ्वीराज चौहान और सल्तनत के अधिकारियों ने मुसलमान होने वाले राजपूतों के लिए मुंशी जिंदगी को तंग कर दिया था।
हुकूमत के लोग सोचते थे कि अछूतों जैसा सलूक करके राजपूतों को डराया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन पर पाबंदी लगी उनके दिल पहले से ज़्यादा आज़ाद हो गए। जब जुबान पर पाबंदी लगी तो जहन और भी ज़्यादा आज़ाद हो गए। जासूसों ने पृथ्वीराज को बताया कि मुसलमान होने वाले राजपूत बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। तब पृथ्वीराज चौहान ने हुक्म दिया कि पाबंदियां और भी सख्त कर दी जाएं। इस दौरान ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के कुछ खादिम मुल्तान और लाहौर से अजमेर चले गए। अब खुदा के मानने वालों की तबलीग एक नई दिशा में चल पड़ी थी। पृथ्वीराज ने अपने वजीर से एक नई योजना बनवाई। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम को अना सागर से पानी लाने के लिए भेजा गया। वहाँ कुछ सिपाही थे। जब ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ने पानी भरने की कोशिश की तो पृथ्वीराज के सिपाहियों ने उसे यह कहकर रोक लिया कि तुम अछूत लोग इस तालाब को अपने गंदे हाथों से नापाक नहीं कर सकते। अगर पानी चाहिए तो कहीं और जाओ। इस पर ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम ने मीठे लहजे में कहा, पानी तो जानवरों को भी नहीं रोका जाता, हम तो फिर भी इंसान हैं। पृथ्वीराज के सिपाहियों ने गहरी नफरत के साथ कहा, हम जानवरों पर पानी बंद नहीं करते, लेकिन तुम लोग जानवरों से भी बदतर हो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने राजपूत सिपाहियों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बेताकत और अक्सर के नशे में इतने सरसर थे कि इंसानियत और तहजीब की कोई भी बात उनके दिलो दिमाग पर असर नहीं कर रही थी। खादिम मजबूरन वापस लौटे और पूरी बात अपने पीरो मुर्शिद से बयान कर दी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने खादिम की बात ध्यान से सुनी और कुछ देर सोचते रहे। मुसलमानों की यह छोटी सी जमात अपने शेख की खामोशी पर हैरान थी। उन्हें यह बात बहुत तकलीफ दे रही थी कि पृथ्वीराज चौहान इन हरकतों पर उतर आया है और इसके नतीजे में उनके पीरो मुर्शिद वुज़ू के पानी से भी महरूम हो गए थे। बेचारे मुसलमान होने वाले राजपूत चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। वे अपनी कमजोरी और बेबसी पर घुटन महसूस कर रहे थे। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपने लोगों को सब्र की सलाह दी और फिर उस खादिम को जो पानी लेने गया था एक बर्तन देते हुए कहा, राजा के सिपाहियों से कहना कि आज इस छोटे से बर्तन में पानी भर लेने दें, इसके बाद हम दूसरा इंतजाम कर लेंगे। खादिम ने हुक्म पाकर फिर से अना सागर की तरफ रुख किया। राजपूत सिपाहियों ने जब उसे आते हुए देखा तो बेमजाक उड़ाते हुए हंसी में टाल गए। खादिम ने पास जाकर कहा, आज के लिए हमें पानी भर लेने दो। एक सिपाही ने बड़ी घमंड भरी आवाज में कहा, आज तो तुझे हमने पानी के कुछ कतरे दे दिए हैं, लेकिन कल इस तरह रुख मत करना। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह का खादिम बड़े सुकून से तालाब के किनारे पहुंचा और उसने अपने पीरो मुर्शिद के बर्तन को पानी से भर लिया। चंद लम्हों में वह चमत्कार हुआ कि राजपूत सिपाहियों के लिए यह नज़ारा हैरानी का बायस बन गया। पूरा अना सागर तालाब का पानी एक छोटे से बर्तन में समा गया। कुछ देर पहले जिस पानी पर ताकत के बल पर पाबंदियां लगाई जा रही थीं, अब उसकी हकीकत सामने आ चुकी थी। राजपूत सिपाही की हालत खराब हो रही थी और वे हैरान होकर उस तालाब को देख रहे थे जो कल तक पूरे इलाके को सैराब कर रहा था। राजपूतों को यह महसूस हो रहा था कि यह किसी बड़ी जादूगरी का नतीजा है। हालांकि राजस्थान की ज़मीन जादूगरों से भरी पड़ी हुई है, लेकिन हिंदू जादूगरों के अनुसार मुसलमान फ़कीर का जादू उन पर भारी था। यह नामुमकिन सा नज़ारा देखकर पृथ्वीराज के सिपाहियों पर इतनी दहशत छा गई कि वे वहाँ से भाग खड़े हुए। खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के खादिम ने भी कांपते हुए कदमों से लौटते हुए लर्ज से लहजे में पूरी वाक़या बयान की। आज उसे पहली बार अपने पीरो मुर्शिद की रूहानी ताकत का सही अंदाज़ा हुआ था। पूरे अजमेर में हंगामा मच गया था। जो भी अना सागर के सूख जाने की खबर सुन रहा था वह हैरान था। कोई भी इस अजीब वाक़े पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन जब शहर के लोग तालाब के पास पहुँचे तो उन्हें यकीन हुआ कि सदियों पुराना यह तालाब अब पानी से बिल्कुल खाली हो चुका था। राजपूत सिपाही जो पानी को ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के बर्तन में समाते हुए देख चुके थे, हैरान होकर पृथ्वीराज के सामने खड़े थे और करीब करीब रोते हुए कह रहे थे, सम्राट, हम शर्मिंदा हैं कि आपके आदेश का पालन नहीं कर सके, लेकिन हमारा यकीन मानिए, हमारे इरादों का कोई
اور اثر نہیں تھا۔ وہ سادھو اتنا بڑا جادوگر تھا کہ ہماری تلواریں بھی اسے ناکام نہیں کر سکیں۔ ہماری سمجھ اور ہوش تک کھو گئے تھے۔ ہماری بہادری اس کی جادوگری کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی۔ ہم تو اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے۔ اے راجپوتوں کے مہان سردار، ہمیں معاف کر دیجئے کیونکہ ہم بے قصور ہیں۔ راجپوتوں کی آواز خوف اور دہشت سے کانپ رہی تھی۔ خود پرتھوی راج بھی یہ خبر سن کر حیران اور پریشان ہو گیا تھا، لیکن سپاہیوں کی موجودگی میں وہ اپنی پریشانی ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ دیر تک چپ رہا۔ پھر اناساگر پر تعینات سپاہیوں کو ناکام کہتے ہوئے دربار سے رخصت کر دیا۔ تو ناظرین، آج کی ہماری اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔